Hello everyone, myself Mr. Vaibhav Titaramare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this lecture series of Mechanical Engineering Material subject. In today's lecture, we have discussing about the pig iron and wrought iron. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have discussed about the malleable cast iron. Malleable cast iron is produced by white cast iron having a heat treatment like annealing. After that, we have discussed about the ductile cast iron. Its second name is nodular cast iron because it contains graphite in the form of spheroids or rounded particles. We have discussed their properties, compositions, and applications, right? I hope you have thoroughly go through the notes and understand what and how the malleable cast iron and ductile cast iron works. So the learning outcomes are after completion of this lecture, you are able to understand the properties and applications of pig iron, understand the properties and applications of wrought iron. These are the program outcomes which are going to be achieved after completion of this topic. Let us discuss about the pig iron. So as you are seeing the figure of blast furnace on this slide, ये जो blast furnace है ये आप सभी ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, बराबर है। यहाँ से हम आयरन और स्लाइम स्टोक्स और को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और यहाँ से हमें फिर मोल्टर आयरन या पिग आयरन मिलता है और यहाँ से स्लैग बाहर आती है और इस पोर्शन से हम हॉट एयर को अंदर छोड़ते हैं, जिसको हम मराठी में झोत भट्टी करके भी पढ़ा हुआ है, बराबर है। तो हमको अगर पिग आयरन चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? इस ब्लास्ट फर्नास से मिलेगा, बराबर है। So the three raw materials are dumped into a blast furnace. कौन से three raw material है? Iron ores, limestone and coke. These are the raw material. Hot air, ये देखिए hot air यहाँ से hot air कितना टेम्परेचर रहेगा उसका? 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट इज ब्लास्टेड इनटू द फर्नास। हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं which helps the drive of chemical reaction। यहाँ पे जो भी chemical reaction होगा उसको help करता है। The coke form carbon monoxide and the carbon monoxide reduces the iron oxide to iron। फिर ये कार्बन मोनोक्साइड से हमारा जो आयरन ऑक्साइड है उसका हमें यहाँ पे आयरन मिलता है। The slack floats to the top। यहाँ पे जो है ये जो स्लैक है आयरन के ऊपर फ्लोट होता है and the metal is transferred to the molds and cooled और मोल्टन मेटल यहाँ से निकल जाता है। It is now a pig iron। यहाँ से जो आयरन हमें मिलेगा that is nothing but a pig iron ready for more iron work for steel making और इस pig iron से हम स्टील को बना सकते हैं। So I think that you have understand this pig iron and this blast furnace. Okay. To make the steel, you are simply removing more impurities। अगर हमको स्टील को बनाना है पिग आयरन से तो हमें impurities को बाहर निकालना पड़ेगा, जो भी अशुद्धता है, जैसे कि मैग्नीज, सिलिकॉन, कार्बन फ्रॉम द पिग आयरन। Impurities are removed by the remelting the metal and adding carbon, steel scrap, and more limestone. The metal can be melted using one of the three methods: open hearth furnace, इलेक्ट्रिक फर्नास एंड बेसिक ऑक्सीजन फर्नास। हम पिग आयरन को 3 फर्नास में मेल्ट कर सकते हैं, जैसे कि ओपन हार्थ फर्नास, इलेक्ट्रिक फर्नास एंड बेसिक ऑक्सीजन फर्नास। लेट अस डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन के टाइप्स के बारे में हम देखते हैं।
सबसे पहले आता है बेसिक पिग आयरन। इसमें सिलिकॉन जो रहता है ये 1.5% मैक्सिमम रहता है और सल्फर की मात्रा बहुत कम रहती है, दैट इज 0.04%। फास्फोरस 1% से कम रहता है, मैग्नीज 1 से 2% तक रहता है और कार्बन 3.5 से लेकर 4.4% तक रहता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पिग आयरन इज फाउंड्री पिग आयरन। ऑल टाइप्स दैट आर यूज्ड फॉर आयरन कास्टिंग्स। इसके अंदर सिलिकॉन जो है 0.5 से लेकर 3% तक रहता है, कार्बन 3 से 4.5% तक रहता है, मैग्नीज 0.4 टू 1.25% रहता है, सल्फर अप टू 0.05% रहता है, फास्फोरस 0.0035 से लेकर 0.9% तक रहता है और आयरन जो है वह बाकी का रहता है, फिर रिमेनिंग इज द आयरन। फिर आता है हमारा फेरो अलॉयज, दैट इज द अलॉयज ऑफ पिग आयरन। They are used as additives in iron and steel industries to control the properties of iron and steel. For example, फेरोमैग्नीज जिसमें 74 से 82% ऑफ मैग्नीज रहता है और फेरोसिलिकॉन जिसमें 5 से 17% तक सिलिकॉन रहता है। बेसिकली आपको याद रखना है कि पिग आयरन के 3 प्रकार होते हैं, बेसिक पिग आयरन, फाउंड्री पिग आयरन एंड फेरो अलॉयज, राइट। Let us discuss about the wrought iron. Wrought iron is produced from pig iron by पुडलिंग फर्नास। जब हम पिग आयरन को पुडलिंग फर्नास में पुट करते हैं तो हमें रॉट आयरन मिलता है। इट इज द मिक्सचर ऑफ वेरी प्योर आयरन एंड सिलिकेट slag. Hence its strength and malleability are reduced by entrained पुडलिंग slag. दोस्तों, रॉट आयरन जो रहता है ये शुद्ध आयरन रहता है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जिसमें थोड़ा सिलिकेट स्लैग भी रहता है। रॉट आयरन इज अ फेरस मटेरियल and aggregated from a solidifying mass of pasty particles of highly refined metallic iron. इसका केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखिए तो इसमें कार्बन बहुत कम रहता है, 0.02 से लेकर 0.03, फास्फोरस 0.05 से लेकर 0.25, सिलिकॉन 0.02 से 0.10, सल्फर 0.008 से 0.02, मैग्नीज 0 से लेकर 0.02, स्लैग जो रहेगा 0.05 टू 1.5% एंड बैलेंस जो भी रहेगा रिमेनिंग जो रहेगा दैट इज आयरन। तो आपने ध्यान में रखना है कि रॉट आयरन जो रहता है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दिस इज हाई ग्रेड आयरन। इसका दूसरा नाम क्या है? हाई ग्रेड आयरन। इतना आपने ध्यान रखना है। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम रॉट आयरन की। जैसे कि रॉट आयरन को हम कभी कास्ट नहीं कर सकते, बराबर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी कि रॉट आयरन की कभी हम कास्टिंग बना नहीं सकेंगे। हाईली डक्टाइल, हेंस इट कैन बी फोर्ज एंड वेल्डेड। इसकी डक्टिलिटी अच्छी रहती है इसलिए हम इसकी फोर्जिंग और वेल्डिंग कर सकते हैं। इसका कोरोजन रेजिस्टेंस काफी अच्छा है। हाई रेजिस्टेंस टू फटीग एंड इट रिकवर द ओवरस्ट्रेन रैपिडली। फटीग नहीं होता है, रेजिस्ट करता है फटीग प्रॉपर्टी को। Let us discuss the applications of wrought iron. First is building construction, that is underground service lines and electrical conduit. पब्लिक वर्क में हम ब्रिजेस बनाने के लिए, ड्रेनेज लाइन या स्लज टैंक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है जैसे कंडेंसर ट्यूब्स, हीट एक्सचेंजर्स, एसिड एंड अल्कली प्रोसेस लाइंस। कुछ अदर्स एप्लीकेशन है जिसके जिसके कोल्ड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड कूलिंग टावर्स। तो these are the very important applications of wrought iron। ये आपको मैच द पेयर करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैच द पेयर करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो these are the some examples of wrought iron। These are the unit outcomes that we have achieved। Select the relevant cast iron for the given job। Identify the properties of given composition of cast iron। Let us review the previous this lecture। In this lecture, we have discussed about the pig iron. That is, pig iron is obtained from the blast furnace, right?
and we also discuss about the wrought iron, that is the high grade iron. It is the purest form of iron, right? These are the program outcomes that we have achieved after completion of this lecture. These are the most likely questions which are asked in MSBT. That is, classify the pig iron, write the properties of wrought iron, write the applications of wrought iron. Okay. Thank you very much, guys. In next lecture, we are going to study about chilled cast iron and alloy cast iron. आई होप आप सभी को ये लेक्चर सीरीज समझ में आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, या जो हमारी सैटरडे को मीटिंग रहती है वहां पे भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूं ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।